Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ग्रेविटेशन ये हमारा सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है. ओके, फर्स्ट टॉपिक इसमें ग्रेविटेशन इज़ बेसिकली द फर्स्ट मेजर टॉपिक दैट वी एज ह्यूमंस talked about and discovered and tells many thing about in the starting of modern physics. As you know, Galileo, Copernicus और न्यूटन ने स्टार्टिंग की थी हिस्टोरिकली मॉडर्न साइंस की. और द मेजर थिंग दे टॉक्ड अबाउट एंड गिव थियरी फॉर इज वॉज ग्रेविटेशन. सो ग्रेविटेशन के बारे में स्टार्टिंग जो ग्रेविटेशन की होती है समझने की, वो प्लानिटरी मोशन से होती है. फर्स्ट टॉपिक इज थियरी ऑफ प्लानिटरी मोशन. नाउ the basic theories of planetary motion that were given to us in the history was first described by Ptolemy. There was a philosopher named Ptolemy that gave us a theory of planetary motion, namely geocentric planetary motion, या geocentric model of the universe. Geocentric model. So the geocentric model, geo means the earth and centric means center. So in this theory, it was assumed that the earth is at the center of the universe and everything else is revolving around us, like sun and moon and other planets are revolving around us. It was given 2000 years back, and it was quite a major popular theory, and it was accepted as the main theory of planetary motion for a very long time, until Copernicus challenged it, and after that Galileo disproved this theory by the discovery of telescope and seeing the moons of Jupiter revolving around Jupiter. Okay, after this, in India, at about 498 DD, 498 AD, Aryabhat, which was a great mathematician and scientist and philosopher, suggested that the solar-centric model would be more appropriate to explain many astronomical phenomena like lunar eclipse and solar eclipse and the motion of moon and sun and planets. It was around 498 AD. So he didn't give any proof or any experiments to establish the theory, but it was just a theory, and he suggested that mathematically it is more appropriate to have this type of central model. Okay, so in this solar centric model, it is assumed that the sun is at the center of the universe or the solar system as we know now, and every other thing in the solar system is revolving around that sun. Okay, including our planet also, the planet Earth. After this, the main contribution in solar centric model was done by Copernicus at about 1543 AD, and he was very eminent about this theory, solar centric model. He is also called it heliocentric model. Helios is the name of sun god in Rome, so it was named heliocentric model. It is basically the same theory. Sun is at the center and everything else is revolving around it. It was given by Copernicus in 1543 AD. और यहाँ से ये सोलर सेंट्रिक मॉडल जो है वो पॉपुलर हो गया और उस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई. इसके बाद गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप को डिस्कवर करके मून्स को देखा, जुपिटर के मून्स को, दैट दोज वर रिवॉल्विंग अराउंड द जुपिटर, एंड उससे ये प्रूफ मिला कि मून्स अगर प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं तो प्लैनेट सन के अराउंड घूमता होगा, सन सेंटर पे नहीं है यूनिवर्स के. तो वहाँ से सोलर सेंट्रिक मॉडल का हमें एक प्रैक्टिकल प्रूफ मिला हीलियोसेंट्रिक मॉडल का. तो गैलीलियो ने भी टेलीस्कोप की डिस्कवरी से इस मॉडल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. इसको पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. ओके, आफ्टर दिस द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन वर एक्सप्लेन्ड बाय केपलर ने, जोहानस केपलर का बहुत मेजर रोल था इसमें. उन्होंने पहली प्रॉपर प्लैनेटरी मोशन की थ्योरी दी थी. इंटरेस्टिंग बात उस थ्योरी के बारे में ये है कि कई लोग अज्यूम करते हैं कि केपलर ने वो सारा डेटा खुद एनालाइज किया था, कलेक्ट किया था. फैक्ट इज़ कि जो सारा डेटा था जिसको एनालाइज करके केपलर की थ्योरी दी थी प्लैनेटरी मोशन की, दैट डेटा वाज रिकॉर्डेड बाय Tycho Brahe, a nobleman in Europe. Tycho Brahe collected that data
and that data, what was that data? Tycho Brahe just observed the motion of moon, planet, stars, sun, and lunar eclipse, solar eclipse, all the data, collected all that data for many years, and that data was then analyzed by Johannes Kepler, and Kepler uh, provided with his theory on the basis of that data. केपलर ने अपनी जो थ्योरी है उस डेटा के ऊपर बेस्ड की, और 3 लॉज हमें दिए, 3 लॉज हमें दिए प्लैनेटरी मोशन के. सो नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू दिस, ये जो टॉपिक है इट हैज़ बीन डिडक्टेड दिस ईयर, सो इट इज़ नॉट फॉर बोर्ड्स और स्कूल पर्पज़, जस्ट फॉर कंपटीशन. ओके, सो बहुत सिंपल से लॉज हैं. फर्स्ट, केपलर ने फाइंड आउट किया कि हम ऑलरेडी अज्यूम करके चलते थे कि जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट के मोशन की वो सर्कुलर होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट आर एलिगेंट. हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट को ही इंट्यूटिवली इमेजिन करना चाहते हैं, लेकिन केपलर फाइंड आउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल. द जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स इज़ इलिप्स. तो जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबकी ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल होती हैं, नॉट सर्कुलर. हालांकि वो इलिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता, मतलब इलिप्टिकल नेचर उसका बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली में इलिप्टिकल है. सो फर्स्ट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, also known as law of orbits, because it tells about the orbits of planets. So theory is law is very simple. It is just saying that every planet in the solar system revolves around sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, with the sun being at one of the foci of the ellipse, one of the foci यानी focus of the ellipse. So this is the statement. तो बस इतना ही थियरी में, इस लॉ में बताया गया कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, इंस्टेड इट इज़ इलिप्टिकल. और इलिप्स में आपने मैथमेटिक्स में कभी इलिप्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, इलिप्स में दो फोकसेस होते हैं. जैसे जो सेंटर होता है सर्कल में, वैसे ही इलिप्स में सेंटर नहीं होता बल्कि दो फोकसेस होते हैं. उनमें से एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है. ओके, सो अगर ये एलिप्स है तो यहाँ पे ये दो फोकस होंगे, एक इधर होगा एक यहाँ पे होगा, फोकस 1 फोकस 2. इनमें से एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है. सो सपोज सन इज प्रेजेंट एट दिस फोकस, and planet revolve on this elliptical orbit with different orbit for different planets. ये इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस होगी सन से. और जैसे सर्कल में सारी डायमीटर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इलिप्टिकल में सारी डायमीटर्स इक्वल नहीं होती हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट डायमीटर होती है और एक लॉन्गेस्ट डायमीटर होती है. इनका नाम हमें याद रखना है. द शॉर्टेस्ट डायमीटर जो ये वाली है, द शॉर्टेस्ट डायमीटर इज कॉल्ड पेरिलियन, and the longest sides are, longest diameter is aphelion. इनका ये नाम हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज़ हो जाता है. ओके, सो दिस इज़, और यहाँ पे प्लैनेट जो मोशन कर रहा होगा ये ऑर्बिट में कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी एट एनी पॉइंट विल बी टेंजेंशियल. तो ये इस टाइप का मोशन होगा इसका. नाउ सेकेंड लॉ, Kepler's second law, also known as law of areas. Law of areas. ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. सो दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, सपोज
and here is the sun at one of the foci, and here is some one planet. तो planet किसी point of time पर इस position पर है और दूसरे point of time पर वो इस position पर है. ये P1 position है, ये P2 position है, and at some time it is at this position P3, at some time it is at this position P4. ओके, 4 पोजीशन मैंने यहाँ पे प्लैनेट की ली हैं. और इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कुछ टाइम पर जो प्लैनेट है वो सन से दूर है, कुछ टाइम पर वो सन के पास है. अब ऑब्वियसली लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि जब प्लैनेट सन के पास होगा तब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा. और जितना ज़्यादा फोर्स होगा प्लैनेट उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से रिवॉल्व करेगा. इसका मतलब जब प्लैनेट सन से दूर है इट इज़ रिवॉल्विंग स्लोली, एंड जब प्लैनेट सन के पास है इट इज़ रिवॉल्विंग फास्टली. ओके, तो स्पीड जो है प्लैनेट की वो चेंज कर रही है कंटिन्यूसली. तो अगर स्पीड चेंज हो रही है और डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच की चेंज हो रही है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ये हमें देखना है. तो बाय रोटेशनल मोशन लॉज वी नो दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इन दिस सिस्टम, हेंस द एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा. ओके, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो उससे हमने एक टॉपिक किया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो वहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आया था दैट एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो उसका मीनिंग ये भी होता है कि एरियल वेलोसिटी कंजर्व है, यानी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम किसी लाइन का इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड. तो वही सेम केस यहाँ पर है. यहाँ पर भी जो एरिया कवर होगा बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन विल बी सेम in the same interval of time. In other words, we can say the aerial velocity of the line joining planet and the sun will be constant. So due to conservation of angular momentum, the area covered in equal time interval will be equal by the line joining the sun and the planet. Or you can say the aerial velocity of the line is constant. Okay, this is the second law. So area का कॉन्ट्रीब्यूशन इस लॉ में, इसलिए उसको हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दोनों जगहों पर सेम रहेगा. जब प्लैनेट दूर है या पास है दोनों जगह पर सेम रहेगा. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr. तो VARA MVBRB. वह मास दोनों के लिए सेम है, मास चेंज नहीं हो रहा ऑर्बिट में ऑब्वियसली. तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, जब डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी. ओके, सो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा. एंड इसको ही सॉल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आता है डेट एरिया पर यूनिट टाइम कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यानी एरियल वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर होगा बाय द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन. दिस इज एरियल वेलोसिटी. Okay, so this is the second law. Now the third law. Also known as law of time periods, या law of simply periods. So it is purely mathematical law. It says the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to
proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit, okay, that means t square proportional to r क्यू, t टाइम पीरियड, r इज द डिस्टेंस. अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ये भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ एलिप्स आपने कभी पढ़ा है तो. ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, पेरिलियन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन एलिप्स एंड एपिलियन इज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन एलिप्स. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हाफ है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम माइनर एक्सिस भी बोलते हैं, माइनर एक्सिस, और इसके हाफ को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस. ऐसे ही जो सबसे बड़ी एक्सिस है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, एंड हाफ ऑफ दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. तो इस सेमी मेजर एक्सिस की यहाँ पे बात हो रही है थर्ड लॉ में. ये आर जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, और ये इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट. ओके, इससे इसको ड्राइव करके हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ. द रेडियस ऑफ एपिलियन टू द रेडियस ऑफ पेरिलियन इज इक्वल्स टू 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e. ये फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज़ हो सकता है, इस फॉर्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स ये भी जो केपलर लॉ में जो भी आया स्टेटमेंट वो भी सारे इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे ई है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ तो आप इलिप्स पढ़ोगे ऑलरेडी, उसमें से ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी. इसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स के अंदर, उसका क्या मीनिंग होता है. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायो तो आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. ये जो भी अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो उसमें ई की वैल्यू दी जाएगी, तो हमें ज़्यादा उसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, ये हो गया केपलर्स लॉस. ये सिलेबस में नहीं था बोर्ड के लिए, लेकिन कंपटीशन सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से पढ़ना से. नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर के थर्ड लॉ का डेरिवेशन क्या है, कैसे हम केपलर के थर्ड लॉ पर रीच करते हैं, वो इस डेरिवेशन में हमें देखना है. सो वी नो दैट कि जो सन और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस इज़ सन, दिस इज़ प्लैनेट, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है. और ऐसे रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में रोटेटिंग या सर्कुलेटिंग बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं. एक तो वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी उसको रिवॉल्व करा रहा है. दूसरा उसका रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आउटवर्ड ऑफ द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. और सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली उस फोर्स का नाम होता है जो रोटेशन करा रहा है, विच इज़ इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दैट मीन्स अगर ये स्टेबल ऑर्बिट है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स on the planet and this is gravitational force between planet and sun. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵², और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2, यानी कैपिटल एम स्मॉल एम ले लेते हैं, कैपिटल एम सन का मास है सपोज, अपॉन r². सो यहाँ से m से m कैंसिल आउट, ये और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T. सो ये हो जाएगा r³ इंटू ω² यानी 4π² /T² = G कैपिटल M. सो यहाँ से आ गया r³ = Gm/4π² into T². Now here G is gravitational, universal gravitational constant, so it is a constant. Gravitational constant. Capital M is the mass of sun, which is also a constant,
and 4 pi square obviously is a mathematical number, so it is also constant. So this whole thing is a constant. That means r cube is proportional to t square, which is the third law of Kepler. तो ये डेरिवेशन था केपलर के थर्ड लॉ का. यहाँ से ये थर्ड लॉ केपलर पे ड्राइव हुआ है. ऐसे ही हम सेकेंड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ केपलर. Deduction of second law of Kepler. ओके एक्चुअली ये मैं टॉपिक पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ. हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का. वहाँ से जो रिज़ल्ट आया था वही रिज़ल्ट ये सेकेंड लॉ को प्रूव करता है. वो रिज़ल्ट था एल वेक्टर इक्वल्स टू 2m dA vector upon dt. So since we know that L vector is constant because of angular momentum conservation, hence dA vector upon dt is also constant. तो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा, पूरा डेरिवेशन आप पिछले चैप्टर में जाके देख सकते हो. सो दिस इज़ द सेकेंड लॉ. यहाँ से ये प्रूव होता है. ओके नेक्स्ट इज़ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें. द टाइम पीरियड of Jupiter is 11.6 years. How far is Jupiter from Sun? Given that distance between Sun and Earth ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए. सन एंड अर्थ की डिस्टेंस जो होती है बीच की वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है. इट इज़ इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और जस्ट 15 करोड़ किलोमीटर्स. ओके चलो इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, डिस्टेंस और टाइम पीरियड. और डिस्टेंस और टाइम पीरियड का रिलेशन हमें पता है बाय केपलर्स थर्ड लॉ. इट इज़ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. नाउ दैट मीन्स T1 square upon T2 square equals to R1 cube upon R2 cube. And suppose 1 is for Earth and 2 is for Jupiter. So T1 की वैल्यू अर्थ के लिए, अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड सन इज़ 365 डेज. एंड T2 जुपिटर का टाइम पीरियड है, वो हमें फाइंड आउट करना है. R1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ. सॉरी T2 हमें दिया हुआ है. T2 इज़ 11.6 ईयर्स. तो 11.6 ये 1 ईयर है बेसिकली, ये 11.6 ईयर्स. R1 यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. एंड R2 वी हैव टू फाइंड आउट. ओके सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं. तो 1/11.6 स्क्वायर्ड equals to R1 cube 1.5 10⁻11 cube divided by R2 cube. यहाँ से सॉल्व करो. R2 क्या आएगा? R2 cube equals to 1.5 इंटू 10⁻11 cube इंटू 11.6 स्क्वायर्ड. ओके तो यहाँ से R2 हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 11.6 पावर 2/3. ओके इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो हमारी डिस्टेंस का आंसर है. यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आएगा. ओके नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशन. So gravitation is the phenomena in which any two objects in the universe that have masses attract each other by some invisible force. That force is known as gravitational force, and this phenomena is known as gravitation. So gravitation is the name given to the force of attraction between any two bodies with mass
in the universe. कोई भी दो बॉडीज़ यूनिवर्स में जिनके पास मास है उनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन in 1665. Okay, now next topic based on this is Newton's law of gravitational force या Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. This law states that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between these masses. Okay, so this is the statement for Newton's law of gravitation. यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इसका मैथमेटिकली. वी हैव टू बॉडीज सपोज m1 and m2, m1 mass, m2 mass. The distance between their centers is suppose r. Then these both bodies will attract each other with equal and opposite forces, attractive forces. So suppose these forces are f12 vector and f21 vector. Okay, now इनका जो f12 वेक्टर और f21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, इट इज़ सपोज f वेक्टर है, सॉरी f है, and f by the statement is proportional to the product of both the masses and it is inversely proportional to the square of the distance between the masses. Equation number 1, equation number 2, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं we will get f proportional to m1 m2 divided by r square. Now प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया कैपिटल G, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Okay, now we could be asked to define what is gravitational constant, universal gravitational constant. तो मैं इसकी यहाँ पे definition लिख रहा हूँ. Definition of universal gravitational constant. इसकी हम definition देखो कैसे बना सकते हैं. Let's take m1 and m2 both as 1 kg and distance between them as 1 meter. In that case, the force between them would be equals to gravitational constant. इस experiment से हम simply G की वैल्यू निकाल सकते हैं. और डेफिनेशन इसकी हो जाएगी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिटवीन टू masses each of 1 kg placed at distance 1 meter apart is equals to the attractive gravitational forces acting between them. ओके, हम ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं.
Now, some properties of gravitational constant. First of all, its nature is scalar and universal. Universal means it does not depend on any factor. टेम्परेचर, प्रेशर, मीडियम, सराउंडिंग, किसी भी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता, तो यूनिवर्सल नेचर है इसका, इसलिए इसको हम सिर्फ कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, यूनिट. इसके फॉर्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं. फॉर्मूला है इसका G(F(r)² अपॉन m1 m2 अगर इक्वल है तो m², तो इसकी यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर. इसको यूज़ करके, फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे इट विल बी m1-1 L3 T-2. ये हमारे पास डायमेंशन आएगी इसकी. ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सारी प्रॉपर्टीज़. ओके, नाउ हमसे पूछा जा सकता है, ये जो हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसी का सब टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Law of gravitation. So for this, let's assume we have a rectangular coordinate system. These are x, y, z axis, and here we have two particle of masses m1 and m2. These are point masses. Point masses means the size of these bodies are very small in comparison to their distances. इस पहले बॉडी का मास है m1 और इस पहले बॉडी की ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ r1 वेक्टर. ऐसे ही ये m2 मास है और इसके लिए पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर. ओके, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इट कुड बी सेट टू r12 वेक्टर और r21 वेक्टर. तो अगर r12 वेक्टर बोलते हैं हम तो ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के इक्वल होगा, एंड r21 वेक्टर बोलते हैं तो ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के इक्वल होगा. तो r12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी 1 से 2 की तरफ, r21 की डायरेक्शन होगी r21. ओके, अगर हाँ r12 वेक्टर लिया तो ये आएगा r1 प्लस r12 r1 प्लस r12. ओके, ये इस पर्टिकुलर एरो के लिए आएगा r21 वेक्टर, और अगर हम एरो अपोजिट लेते हैं तो r12 वेक्टर आएगा. यानी r12 वेक्टर की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, 2 to 1, और r21 की 1 से 2 की तरफ है, 1 to 2. ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे. तो सपोज़ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज़ F21 वेक्टर, बिकॉज ये 2 पर लग रहा है 1 की वजह से, and this is the reaction force of this. It is F12 vector. It is applying on 1 because of 2. So clearly we can see that F21 vector and F12 vector are equal and opposite vectors, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर. तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, और इसका हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये आएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. इस F12 वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो 1 से 2 की तरफ है. 1 से 2 की तरफ हमने लिया है r21, तो यहाँ पे हम लगाएंगे r21 वेक्टर. इसका स्क्वायर चाहिए तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा. अब ये पूरी क्वांटिटी जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करने के लिए हम जो वेक्टर था उसको कैप यूनिट वेक्टर में लिख देंगे, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है. तो हम यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. यहाँ पे हम कैप हटा के वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ऊपर एक एक्स्ट्रा आर आ जाएगा. उसको बैलेंस करने के लिए हमें नीचे भी एक एक्स्ट्रा आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो जाएगा. सिमिलरली फॉर F21 वेक्टर इट विल बी G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर स्क्वायर r12 कैप एंड G(m1 m2) r12 वेक्टर क्यूब r12 वेक्टर. ओके, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का. लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस. अ स्फीयर
of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 centimeter apart with a force of 0.1 milligram weight. Full stop. Calculate the value of gravitational constant. Value of gravitational constant. Okay, let's try this. यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है m1 40 kg, m2 15 kg, distance between them is 20 centimeter, that means 0.2 meter, and force is 0.1 milligram weight. तो 1 kilogram weight is equals to 9.8 न्यूटन, जी न्यूटन बेसिकली. तो यहाँ पे ये मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.1. पहले मिलीग्राम को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 किलोग्राम आएगा, एंड 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. तो इसमें 9.8 का मल्टीप्लाई, ये न्यूटन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. नाउ फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से G इक्वल्स टू हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. F की वैल्यू है 0.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय m1 m2 आर 40 kg एंड 15 kg. 40 इंटू 15, यहाँ से इसे सॉल्व कर लो. वही लगभग वैल्यू आएगी 6.5 या 6.6 के आसपास. 6.5 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसके आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए. ओके.